Dear students, in this video lecture I am going to talk about circular flow of income model. As you all know, a macroeconomic system is more complex than a micro unit. And in a macroeconomic system we talk about different sectors, and these different sectors are having different objectives, and most of the times they have conflicting objectives. For example, as we have already talked about in the previous lecture, कि कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर हमेशा प्रोडक्ट के कम प्राइसेस पे करना चाहेगा, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा प्रोडक्ट्स के हाई से हाई प्राइसेस चार्ज करना चाहेगा. गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाहेगी, बट जो टैक्स पेयर्स हैं वो हमेशा से एक कम टैक्स पे करना चाहेंगे. So overall macroeconomic system का equilibrium obtain करना is not that easy task, and therefore macroeconomic system is a more complex system, and it has a large number of variable units with differing and even conflicting objectives, and that is why the interaction between them makes it a dynamic unit. Actually, there is a model which is known as circular flow of income model. ये जो different sectors हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, ये कैसे आपस में इंटरैक्ट करती हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या कितनी इंटरडिपेंडेंस है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल मॉडल है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल. And this model helps us to understand the basic functioning of macroeconomic system, the basic relationship between different sectors of the economy like agriculture, services, industry, and how they are interdependent on each other. This is basically explained by this circular flow of income model. And we will start from a basic model to more advanced model. Basic model में हम two sector model लेके चलते हैं, and under this we divide the whole economy, means all the economic sectors, into two categories: households and firms. You can also say consumers and producers. Households are being consumers and firms are being producers. So the term households here mean all consuming units like a single individual, nuclear family, a joint family, or any community which purchases goods and services for consumption. And firms here mean all producing units which may be a sole proprietor, a partnership firm, a joint stock company, a multinational corporation, a government corporation, means simply all those entities which produce and sell goods and services. So as I told you that we can say households as consumers as well, because they are basically consuming the goods and services, they make purchases for consumption. And firms, we can also call them producers, because they are basically engaged in production of goods and services. We can understand the relationship between households and firms from these two graphs. So on the left hand side, we have simple explanation of the relationship between households and firms. From households, firms को क्या मिलता है और firms को household से क्या मिलता है, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो हम सबसे पहले आप जो हाउसहोल्ड है, हाउसहोल्ड्स गेट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स. जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं हाउसहोल्ड को, एंड उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउसहोल्ड उन्हें क्या है, पेमेंट करता है, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. एंड हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या देती है, फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. These come from household sector. ये फर्म्स को देते हैं.
और अपनी फैक्टर सर्विसेज, अपनी लेबर सर्विसेज, अपने जो कैपिटल लगाई है उसके बदले में उनको क्या मिलता है? फैक्टर रिवॉर्ड्स, जिस फैक्टर इनकम जिसे हम बोलते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो लुक एट हियर, where households get goods and services, and in return of that they pay consumption expenditure, means they make payment for goods and services. On the other hand, households provide factor services to the firms, and in return of that firms provide income or factor income in the form of rent, wages, interest and profit. So right hand side figure elaborates this explanation which we are discussing. So businesses here means firms or production unit. So from production units we get final consumer goods and services, final goods and services मिलती हैं households को, और household इसके बदले में आपका value of output means total monetary value of all final goods and services, जो वस्तुएं हमने खरीदी हैं उसका भुगतान करते हैं. ये हो गया प्रोडक्ट मार्केट. ऑन द अदर हैंड फैक्टर मार्केट रिलेशनशिप है कि हाउस होल्ड से उन्हें फैक्टर सर्विसेज मिलती है, जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बोलते हैं. वहीं बिजनेसेस या फर्म्स से उनको हाउस होल्ड्स को इनकम मिलती है, जिसे हम वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स बोलते हैं. सो फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, और अगर किसी ने भी इस साइकिल को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो कुछ समय के बाद वो अपने आप को हार्म करता है, अगर इस साइकिल में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की. फॉर एग्जाम्पल, if households are consuming less, means they are spending less, अगर वो खर्चा कम करेंगे तो बिजनेसेस, फर्म्स या जो प्रोडक्टिव यूनिट है उनको कम पेमेंट मिलेगा, और उनको कम पेमेंट मिलेगा तो वो क्या है, पेमेंट भी कम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोअर वेजेस पेमेंट्स, रेंट्स पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रॉफिट्स में भी. सो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद हाउस होल्ड को ही नुकसान होगा इन द फॉर्म ऑफ लोअर इनकम. सो देखिए, इसने सेविंग्स ज्यादा करना चाहिए और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपना घटाना चाहा, जिससे क्या है, बिजनेसेस को कम पेमेंट मिलेगा फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज, तो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे. प्रोडक्शन कम करेंगे तो पेमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि उनको फैक्टर सर्विसेज कम चाहिए. फैक्टर सर्विसेज कम चाहिए तो हाउस होल्ड्स को पेमेंट भी कम मिलेगा. तो इन द नेक्स्ट साइकिल अगेन उनके पास ऑटोमेटिकली इनकम कम हो जाएगी और उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा, और ये एक vicious cycle शुरू हो जाएगा. So therefore firms and household should not try to disturb this circular flow of income. So this was the two sector model. We can add more sectors. As you all know that nowadays an economy is a very complex macroeconomic system, and an important pillar of the whole macroeconomic system is the government. So government is a very important player apart from households and firms. And you all know government collects money in the form of taxes from both households and firms. And then this collected money is spent by the government to meet its requirements and for various development activities, and as well as in the form of subsidies and other transfer payments. So in effect, the money comes to the government in the form of taxes, then it goes back to the households and firms in the form of payment of wages and salaries to the households. जो household, जो individuals जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी फॉर्म में, उन्होंने जो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको उसके बदले में पेमेंट मिलता है, और गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का भी कंजम्पशन करती है, तो वो जो परचेज करती है फर्म से उसके बदले में उनका पेमेंट करती है इस कलेक्टेड मनी से. So government is also a very much important part of this circular flow of income model. Not only this, there are other important sectors as well. For example, nowadays you cannot think any economy without financial sector and external sector. Financial sector is a very dominant and very fast growing sector nowadays. And similarly एक्सटर्नल सेक्टर, यानी जो हमारा वित्तीय क्षेत्र है और जो हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर है या एक्सटर्नल सेक्टर है, वो दोनों बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम के.
और हम मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम के इक्विलिब्रियम या उसकी अंडरस्टैंडिंग तब तक अधूरी है जब तक हम इन दोनों सेक्टर्स को इस पूरे सर्कुलर इनकम फ्लो मॉडल में इंक्लूड नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये क्या करते हैं, ये सेविंग्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ, दे कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम फर्म्स, households as well as from the government, and then it is channelized in the form of investment. So जहां एक तरफ से ये साइकिल में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल है, जहां पे वो एक तरफ से कलेक्ट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ से वो इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में. On the other hand, external sector refers to the relations with other countries with whom we have economic transactions in the form of imports and exports and foreign trade flows. Means financial flows, foreign direct investment and foreign institutional investment. So हम दोनों की बात कर रहे हैं, फिजिकल गुड्स के भी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की, सर्विसेज की भी गुड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की, और हम जो इन्वेस्टेबल फंड्स का फ्लोज है उनकी भी बात करते हैं. तो ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं. सो एक्सटर्नल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, हम जहां जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो दूसरे देश हैं, उनको अपना सामान निर्यात करते हैं, उसके बदले में हमें उनसे पेमेंट मिलता है. इसी तरह हम लोग दूसरे देशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और उसके बदले में हम दूसरे देशों को पैसा भेजते हैं. इसी तरह रेमिटेंसेस का भी फ्लो होता है कि जो हमारे लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो अपनी इनकम ट्रांसफर करते हैं. जैसे जो दूसरे लोग हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, वो अपनी इनकम वहां अपने होम कंट्री को ट्रांसफर करते हैं. इसी तरह एफडीआई हमारी कंट्री में भी आ रहा है और हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में भी जा रहा है. तो ये दोनों तरह के फ्लोज इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में इंक्लूड होते हैं. इस पिक्चर में हमने सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करके एक कंप्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश की है. एंड मोस्ट ऑफ द फ्लोज आर नेट फ्लोज. रिमेंबर, मोस्ट ऑफ दीज फ्लोज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, नेट फ्लोज है. नेट फ्लोज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, यहां पे टैक्सेस है, तो दीज आर नेट टैक्सेस. नेट टैक्सेस का मतलब इसमें जो ट्रांसफर पेमेंट है, सब्सिडीज है, वो एडजस्ट है. सो इसीलिए, क्योंकि कई डायरेक्शंस हो सकते हैं, एक जगह से दूसरे सेक्टर के कई तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, और एक हम ग्राफ में उन सारे रिलेशनशिप को एक साथ शो नहीं कर सकते. सो टू मेक थिंग्स सिंपल, we are only showing important flows from one sector to another sector. So for example, as you all know, from households, बिजनेस या फर्म से रिलेशनशिप हमने देख ही लिया था कि बिजनेस से हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, और उसके बदले और फैक्टर इनकम मिलती है. वहीं हाउस होल्ड से बिजनेसेस को फैक्टर सर्विसेज देते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाता है. गवर्नमेंट हाउस होल्ड से, देखिए, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, और इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड पे दो तरीके से. एक बेसिकली जो इनके यहाँ लोग लगे हुए हैं, जो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, और जो उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिया है, उनको फैक्टर रिवॉर्ड. उसी तरह बिजनेसेस से भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, और जो उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, उसके बदले में उसको पेमेंट करती है. देन वर्ल्ड इकोनॉमी से बिजनेस का रिलेशनशिप. सो जो फर्म्स हैं, वो दूसरी इकोनॉमी से इंपोर्ट करती हैं और उसका पेमेंट करती हैं. इसीलिए फ्लो का डायरेक्शन इधर है, बिकॉज इट्स अ पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स. एंड वर्ल्ड इकोनॉमी से दीज बिजनेसेस, दीज फर्म्स गेट पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, ये रिसीव करती हैं एक्सपोर्ट. उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बिजनेसेस फर्म से सेविंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आता है, और उन सेविंग्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन प्रोडक्टिव यूनिट प्रोडक्शन पर्पस के लिए चैनलाइज करती है. इसी तरह हाउस होल्ड से जो सेविंग्स आती हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होता है. इसके बदले में उनको इंटरेस्ट और कई बार लोन्स भी हाउस होल्ड्स लेते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है वेरियस पर्पसेस के लिए. देन हाउस होल्ड डायरेक्ट इंपोर्ट भी करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से, वो फ्लोज भी आता है, उसका भी पेमेंट करते हैं. सो दिस इज द बेसिकली समरी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी.
So this is the simple explanation. This explanation can be extended and there may be more additions to this circular flow of income model, but क्योंकि हमें अभी बेसिक समझना है तो हम यहीं तक बात कर रहे हैं. So if you have any question and query, you can mail me at nagendraresearch@gmail.com. Thank you.